pursuit, we are very, very lucky to have our respected Samnijis. Okay. So we have been very, very lucky to have respected Samnijis with us who uplift us spiritually, um, and have made great efforts to uplift our soul. But now it's also necessary that we take care of our bodies because they are like the temples in which our soul resides. And I hope this health camp helps everyone in doing that, in making yourself better and making a change in the lifestyle, which helps do good to your bodies as well. So, can I request, first of all, I'll request Vandami to come and give us blessings so that we can have this program successfully. Vandami. Okay, may I request Mr. our trustee, beloved trustee, Mr. Rajesh Jain, to please come and introduce our next speaker, Dr. Ajay Kumar. वंदामी नमन स्वामी समनी मेरे प्रज्ञा जी, आपके आशीर्वाद सानिध्य से हम अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं। पर समनी जी ने भी बताया कि शरीर साथ देगा तो आत्मा भी साथ देगी। तो इस शरीर के साथ के लिए हम लोगों ने आज दो सेशन रखे हैं। एक है डॉक्टर अजय कुमार का। the the whole idea behind this session was to get somebody who can give some knowledge to us about the human psychology. But for me, that was secondary. Why we invited Dr. Ajay is he himself is deeply involved in the spiritual knowledge. His knowledge on Vedas cannot be compared with anybody else. He runs his own meditation camps in UK as well as back in India. And more importantly, though he is with the NHS for the last 20 years with different hospitals as a distinguished senior psychiatrist, he's down to earth. I have requested him several times before, not even a single time. The sooner he read the message, he said, "Yes, Rajesh, I'm available for the session." I think such a humble background we will not be able to find anywhere else. With a small introduction, always कभी ना कभी मैं जब इंट्रोड्यूस करता हूँ तो कुछ तो रह ही जाता है, आगे याद आएगा तो फिर बता दूंगा। बट मैं डॉक्टर अजय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें थोड़ा ज्ञान दें। तो अजय।
जरूरत है इसकी कि ऐसे अगर बोलूंगा तो आवाज जाएगी? अच्छा। नहीं नहीं ठीक। थैंक यू फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन राजेश जी। आप जब भी किसी के बारे में बोलते हैं इतना मीठा बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। थैंक यू। तो मैं अब यहाँ पे जब भी मुझे राजेश जी ने बुलाया तो ये नहीं बताया था कि कहाँ बुला रहे हैं। बस ये बोला था कि हेल्थ इवेंट है। अभी मैं आपके सामने ऐसा इंट्रोडक्शन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, माफ करिएगा। यहाँ पे अम, ज्ञान की बात बोलने का अधिकार मेरा बिल्कुल भी नहीं। अम, लेकिन टॉपिक जो आपने मुझे सजेस्ट किया, ये आपका सजेस्टेड टॉपिक, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है? बच्चों को सब समझ में I'll mix it. So, when I got that topic, it has been sitting with me for about 4 weeks now. And I've been thinking about how to talk about the psychology of happiness. And every time I come up with some ideas, it very quickly becomes very cliched list of statements that you will see on TikTok and Instagram and Facebook posts. Be generous to others, be disciplined with yourself. Everyone knows these things. So after spending many sleepless nights thinking about it, what I've decided to do is tell you a story that will help you, that will help, that will that will probably help um, put the message in a way that will stay with you. Because it's very easy to talk about the cliches. You will hear them, you will feel nice, but when once you leave that door, nothing will stay with you. So let me start with that story, and then I'll try and introduce science around that story. The story will be familiar to all of you because it's an ancient Indian story, 3000 or so years old at least. तो आप लोग दुर्गा पूजा में सब लोग गए होंगे, ठीक? वहां पे काली की मूर्ति रहती है, जीभ निकाले, नर मुंडों की माला। उसकी कहानी पता है सबको? मैं याद दिलाऊं? तो कहानी ये है कि एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज या महिषासुर। तो रक्त बीज को एक वरदान मिला था कि उसकी खून का एक भी कतरा अगर कहीं जमीन पे गिरेगा तो वहां से नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो घमंड हुआ उसे, उसने अत्याचार किया। सो ऑल द गॉड्स वेंट टू दुर्गा asking for help. So Durga came and started fighting with him, but every time she would strike him, खून गिरता था और पैदा हो जाते थे रक्त बीज सब तरफ। So after going on for a while, Durga becomes angry. फिर उनके फोरहेड से, उनके फ्राउन से काली निकल के आती। एंड काली not only killed him but drank all the blood. तो एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। So the Quran describes it as वो सिर्फ खा गई, सिर्फ सिर्फ मारी नहीं, खा गई, खून पी गई, कुछ नहीं छोड़ा। But by the end of it, she was filled with bloodlust. She was intoxicated with rage. She could not stop. So she kept destroying everything in her path. The whole creation was at risk. And all the gods, they ran away and hid, hoping that things will get better, that she will settle down. She was going on this rampage, destroying, burning everything. So they went to Shiva and they asked Shiva for help. So what did Shiva do? He did not go and fight her because he could not have won. He lay down in her path, and when she steps on his chest, that's the image you would have seen in all the Durga Puja stalls and in the frames in our homes and in temples. Kali, sometimes with her right foot, sometimes with her left foot, standing on
next to Shiva with her foot on his chest, and he's lying there passively looking at her. So that's how she was passive. Now, all our ancient stories are metaphors, they are symbols. स्टोरी कहानी होती है, याद इससे हमें रहे, और उसके पीछे की मीनिंग एक होती है जो कि हमारे सिविलाइजेशन का नॉलेज है, जो कि हमको कुछ सिखाने की कोशिश करता है. तो इसमें अभी इसको एनालाइज करते हैं, क्या है इसमें सीखने की बात. और जो आपका क्वेश्चन जो आपने जो मुझे दिया था, उसका आंसर भी इसी में से निकल के आया. तो काली इज अवर एंगर, दुर्गा इज अवर एनर्जी टू एक्ट, to do what needs to be done. Rakt Bij is our desires. You can never fulfill your desires by actually trying to meet them. Every time you try to meet a desire, it leads to more desires. And the more you try to indulge, the more you try to fulfill your senses, you have more meaningful satisfaction. Okay? So that energy that we have to act, that becomes frustrated because it can't meet the desires. The desires keep overwhelming it. So out of that frustration comes the anger. And what happens when we are angry? Our thinking goes out of the window. We are no longer in control of what is happening. We are at complete mercy of this anger, which is meaningless. All it wants to do is burn everything. It destroys everything. We destroy our relationships. We say things that are hurtful. बाद में पछतावा होगा कि ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया. उस समय कंट्रोल नहीं होता. तो उसका उपाय इसी कहानी में. शिवा रिप्रेजेंट्स अवर इंटेलेक्ट. आदि योगी बोलते हैं. So he represents our intellect, our ability to think and discriminate and choose what to do and what not to do. Now, you cannot reason with anger, right? You cannot fight and win with anger. So what Shiva does is he lies down without engaging, but not taking his eyes away. So he watches Kali approach him without turning away, without trying to hide, without trying to argue or fight with the anger, just allows it to come to it. And once anger meets, that's when anger settles down. Okay. Now in this story, anger is the emotion, and I think it is right to build the story around anger because anger is the most destructive of the emotion. Okay. But can anyone think about what it means to have anger but not directed towards something else? So usually anger is towards something outside of us. We are angry with someone, with something not going our way. But sometimes this anger is directed inwards by our frustrations with ourselves. So it leads to guilt and shame. You lose rationality. So guilt and shame is anger turned inwards that can then lead to that state of mind where you are completely paralyzed, which is what depression is in a way, in a sort of psychological, if you want to think about what happens to the person. So we have to give power to the Shiva inside us. We have to train ourselves to be able to watch intense emotional states without reacting, without reasoning with it. Just watch it. That's what Shiva does. Watch intense emotional states and they settle down, they go away, they take a back seat. They let go of you. तो अभी ये कैसे करते हैं? So now that you have heard the story, next time you are angry, will you be able to just watch the anger without doing anything? Will you? No. No? You can try. We are always trying, right? All of our lives we have been trying to do that. So
why is it not possible? When the understanding of it is so simple, why is it not possible for us to do it when that time comes? So you have to think of it like going into battle. If the first time you pick up a gun is when you are in battle, you are not going to be able to win that battle. You have to train for months and years for that 1 hour of battle that you're going to do. Yeah, if you look at any of the sportsmen, Usain Bolt, world record holder in 100 meters race, his race is in less than 10 seconds. Yeah, his actual performance is less than 10 seconds. How much is his training? Yeah, years. So if we have to fight this battle, if we have to actually use that ability to watch ourselves at the time when we need it, we can't just leave it for when that time comes. We have to practice it all the time. And how do you practice it? So the essence of it is watching, your ability to watch your own mind in action. That is what it is, right? We all have that ability, but the ability is not naturally switched on in most of us. Some of us are born, people like you who follow this path. They find it easier to access that ability to watch themselves. But for most of us, we have to train ourselves to do it. Meditation bole, prarthana bole. So all these strategies are to train yourself to watch your mind in action. The more you train it, the more likely you will be able to use it when the time comes. Yeah. So let's try and break it down into how this training can be introduced in our lives. So I'm not exactly answering your question yet, but I'll come back to your question about happiness itself. But this is the more important bit. So people think of mind as thoughts, right? This is our thinking, maybe our feeling. But mind, our thinking, our feelings, these are physiological processes. Okay? So there is a chemical reaction happening in our brain and in our body when we are feeling and when we are thinking. So mind is not just the bundle of thoughts. Mind is that which is contained in our nervous system, in our body. One manifestation of it is thought. One manifestation of it is feeling. But it is everything that happens inside. Some of it is in our awareness, some of it is not in our awareness. So when you have to start training your mind to watch itself, for most of us, the hardest thing to do is to be asked to sit and watch your thoughts. You can't do it. Your mind runs away somewhere else. You are asked to sit and meditate. Everything starts itching, and you have to, you can't sit still, right? So that is putting you in the battlefield straight away without the training. So how does the training start? So if you are, like I was saying earlier, the mind is in the whole body and mind are not two different things. Everything is body, everything is mind. So we start training with the more Hindi में बोलते हैं स्थूल, more substantial, more physical aspects of the body mind, and we work towards more and more subtle aspects of body and mind. तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी चालू करेंगे तो पहले हम जिसने कभी नहीं किया है मेडिटेशन, उसके लिए, जिसके लिए नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है करने का, यू हैव टू स्टार्ट विथ योर बॉडी, विथ योर फिजिकल सेंसेशंस. तो जो पूरा योगा का प्रोसेस है उसमें जिसमें सारी एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, दैट इज़ एक्सरसाइज फॉर द माइंड. You are training your mind to pay attention to internal biological feedback. प्रेशर का, सारे सेंसर्स होते हैं हमारे अंदर, प्रेशर, टेम्परेचर, पोजीशन सेंस, मूवमेंट्स, स्ट्रेचेस, तो उससे ट्रेन करते हैं. फिर आफ्टर हैविंग डन दैट फॉर अ वाइल, यू देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ इंटरनल रिदम्स, ब्रीदिंग का, हार्ट बीट का.
फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेयर द व्हाट वी थिंक ऑफ एज मेडिटेशन, जहाँ पे आप अपने विचारों को देखते हैं, दैट इज़ the step after that. You can build it all together if you have a good teacher who can train these things, who can train you in these things. या फिर आप लोग तो यही सिखाते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बस उसको साइंटिफिक एक एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये हुआ, फिर दूसरा एक होता है कि हमारा जो इमोशंस, हमारे जो थॉट्स हैं, इफ़ वी accept that they are physiological actions, that they are actions that involve chemicals in our brain, chemicals in our body, तो उसके साथ फिर हमको एक मॉडल मिल जाता है समझने का इसको बेहतर। मॉडल ये है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स समझ लीजिए। एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे कि सारा थिंकिंग होता है, मेमोरी स्टोरेज होता है एंड सो ऑन। एक होता है हमारा ऑटोमेटिक पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जिससे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इमोशनल स्टेट्स भी इसी का पार्ट होता है काफ़ी हद तक। तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके भी फिर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एक्टिवेटिंग पार्ट, एक पार्ट होता है रिलैक्सिंग पार्ट। तो एक्टिवेटिंग पार्ट का जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, दैट इज़ फ्लाइट और फाइट रिएक्शन। सबने सुना है फ्लाइट और फाइट रिएक्शन? अगर अचानक से सामने कोई खतरा आता है तो हम चेत जाते हैं, एकदम से एक्टिवेटेड हैं हम। उस समय झगड़ा भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ी हुई है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, दिमाग अलर्ट है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। नॉर्मली आप सिर्फ एक ही चीज़ पे देखते होंगे, लेकिन उस समय कहीं से कुछ भी मूवमेंट होगा, योर माइंड इज़ अलर्ट टू नोटिस इट। तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी सिंपैथी में वो हमको तैयार करता है झगड़ा करने के लिए, भागने के लिए। इसका ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है हमको रिलैक्स करना। तो अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया, हजम करना है हमें वो खाना, पड़े हुए हैं। सोने जाना है तो सोने के लिए थिंकिंग शट डाउन होनी है। थिंकिंग शट डाउन करेगा, वो रिलैक्स करेगा हमारी बॉडी को, जिससे कि वी कैन गो ऑफ टू स्लीप। तो अभी हमारी जो लाइफस्टाइल आजकल है, उसमें हम जो ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक्टिवेटिंग वाला सिस्टम है, वी आर फीडिंग इट टू मच। इट इज़ ऑलवेज ओवर एक्टिव। हम फ़ोन देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। नेचुरल हमारे जो पुरखे करते थे कि सुबह का काम किया, दोपहर में खाना आके खा के थोड़ी देर सोए, फिर नो, वो लाइफस्टाइल ख़त्म हो गई। अभी हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे पास शट डाउन करने का टाइम ही नहीं है। तो जब भी रात होती है, शट डाउन का समय आता है, दिमाग चलता रहता है। We can't shut down. We can't activate our parasympathetic system. It's all dampened down. Our sympathetic system is too activated. फिर बहुत सारी आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कितने सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी एंड सो ऑन, जिसमें ये जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बेस लाइन एक्टिवेटेड हर समय रह रहा है। So people are breathing faster, they are more alert, they are more vigilant, they can't relax. और वो सो भी नहीं पाते हैं, फिर रात में वो जगते रहते हैं, because they can't access the relaxation system. तो अब हमारी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक्स ऐसे सुनने में समझ में नहीं आता कैसे काम करती होंगी, लेकिन करती हैं। तो मैं आपको इनके थ्रू जस्ट एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूँ, और अगर टाइम बचेगा तो फिर और आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। तो एक टेक्निक होती है एक्सरसाइज। वेल बेसिकली जितनी भी टेक्निक्स हैं, इनमें एक कॉमन थीम है, यू आर पुटिंग योर बॉडी अंडर स्ट्रेस, बट दैट स्ट्रेस इज मैनेज्ड। तो मैनेज्ड स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी यूज हो जाती है, डिसेंसिटाइज हो जाती है थोड़ा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन हो जाता है, हार्मनी आती है। सो वो हार्मनी एक्सेस करने के लिए हमको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। एक है सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज। अपने शरीर को, हम जो हमारा जो शरीर है ये डिजाइन हुआ है काम करने के लिए। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो कि हमारी बॉडी में मसल्स में प्रोड्यूस होती हैं, जॉइंट्स में प्रोड्यूस होती हैं, जब हार्ट तेज बीट करता है तब प्रोड्यूस होती हैं, वो होती ही नहीं है। तो हमारी बॉडी में हार्मनी का चांस कम हो जाता है।
So we have to put our body through some exercise 3 to 4 days a week. हाँ, 3 to 4 days a week. ये आप दौड़ने आ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ करना जरूरी है. एंड इट हैज टू बी समथिंग विगरस. ओके, सिर्फ टहलने चले गए सुबह शाम, उससे काम नहीं चलता है. यू हैव टू गेट योर हार्ट रेट अप, यू हैव टू स्वेट, यू हैव टू फील द पेन इन योर मसल्स, तभी वो सिस्टम एक्टिवेट होता है. ठीक, तो ये एक्सरसाइज है. दूसरा होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सो फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दो तरीके की होती हैं. एक होता है जिसमें कि हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं. और दूसरा होता है जिसमें हम बहुत देर तक बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं. इन दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है. जल्दी जल्दी सांस लेने पे हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो जो बेस लाइन कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे फिर कम हो जाती है. अभी हमको लगता है कि ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस है. नहीं लगता है ना, सबको पता है. नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमारे बॉडी का सिस्टम रेगुलेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमको अपने अंदर, एक एक पर्टिकुलर मात्रा में. और जब हम एक्टिवेटेड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है. तो उसके कारण से हमारा जनरल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर हम नापें आज के लोगों में और आज से 100 साल पहले के लोगों में, तो उनके अंदर ज्यादा रहा होगा हमारे से, क्योंकि हम इतना एक्टिवेटेड हैं. हम हर समय किसी ना किसी चीज को लेके एक्साइटेड हैं. वो फोन देख के कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन कुछ आ रहा है फोन पे, वी आर कॉट अप इन इट. ठीक है ना. तो जब हम जल्दी सांस लेते हैं, तो इसको आप प्राणायाम मान लें या सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग मान लें, इट डजेंट मैटर. ब्रीदिंग फास्ट एंड देन होल्डिंग योर ब्रेथ, हाइपर वेंटिलेशन इज व्हाट यू नीड टू डू. तो उससे हम अपने बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम का. तो जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनको ये खासकर फायदा करता है, क्योंकि वो फिर बायोलॉजिकल फीडबैक जो है वो हम ब्रेक कर देते हैं. अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो हमारे शरीर में टिंगलिंग, नमनेस, अजीब अजीब से सेंसेशन, नौशिया, घबराहट, ये सब बढ़ती है. तो हम डेलिबरेटली जल्दी सांस लेके अपने बॉडी को अट्यून कर लेते हैं कि वो सब चीजें नहीं हो. तो एक ये हो गया. फिर सस्टेन्ड स्लो ब्रीदिंग, धीमे धीमे सांस, मिनट में 2 सांस, मिनट में 3 सांस. ये आप 10 मिनट 15 मिनट तक करिए. तो अभी हम कॉपी कर रहे हैं जो हमारी नींद में होता है उसको. नींद में हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, रिलैक्सिंग सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है डीप स्लीप में. डीप स्लीप में हमारी सांस की स्पीड बहुत कम हो जाती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है. हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जगते हुए. तो उसके लिए हमको सस्टेन्ड स्लो ब्रीदिंग करनी होती है. अगेन, आप में से जो भी योगा जानता होगा उसने ये एक्सरसाइज की होंगी उस ट्रेनिंग. बट दिस इज द पर्पस ऑफ इट. Sustained slow breathing increases the carbon dioxide levels in our blood, slows down all the metabolic functions, and gets us in a relaxed state. और ये दोनों की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम इज इन बेटर हार्मनी. अब बहुत ज्यादा नहीं करना है, दिन का 15-20 मिनट करना है. ये हो गया. अभी देर आर अदर वेज ऑफ स्ट्रेसिंग अवर सिस्टम इन अ कंट्रोल्ड वे, जो कि हार्मनी इंप्रूव करता है. एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आप लोग तो भाई बहुत करते हैं. ठीक है ना. बट यू डू इट नॉट जस्ट वंस अ ईयर, लेकिन छोटे अमाउंट में थोड़ा ज्यादा रेगुलरली. तो जरूरी नहीं है कि 13 दिन का ही फास्ट हो. 1 दिन 2 दिन का फास्ट बीच बीच में करते रहना चाहिए. तो उससे वो सिस्टम जो है, इट गेट्स अंडर मेजर्ड स्ट्रेस एंड इट हेल्प्स रेगुलेट our immune system, our emotional resilience, all these things improve with that. और एक कुछ अच्छा, एक और चीज हम कर सकते हैं, वो है कोल्ड शावर्स. सुना है किसी ने कोल्ड शावर्स के बारे में? हाँ. हाँ, आई स्लीप जरूरी नहीं है. इनफैक्ट द इजीएस्ट थिंग टू एक्सेस इज एक बड़े बर्तन में पानी रख के अपना मुंह उसमें डाल लें, जितनी देर सांस रोक के कर सकते हैं. आइस वाटर, जस्ट फेस उसमें डुबा लें, 2-3 बार करें, उतने से चालू कर सकते हैं. बट इफ यू ऑफ कोर्स इमर्स योर होल बॉडी, इट इज अ मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट. अगेन, मेजर्ड स्ट्रेस है. और ये काम सिर्फ 4-6 हफ्ते आप कर लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. प्रोफाउंड इफेक्ट्स, प्रोफाउंड इफेक्ट्स.
और जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं ना, वो मेडिटेशन भी एक्चुअली ऑटोनॉमिक रेगुलेशन की एक्सरसाइज ही है एक तरीके से, बट वी आर डूइंग इट इन अ वेरी सटल वे बाय ऑपरेटिंग अवर जस्ट अवर थॉट्स एंड अवर अवेयरनेस इंस्टेड ऑफ अवर बॉडी। तो बहुत सारे रिसर्च हैं, अभी हार्टफुलनेस वालों ने, सहज मार्ग वालों ने कितना रिसर्च अभी पब्लिश किया है कि वो फिटबिट लगा के वो मेडिटेशन करवाते हैं तो हार्ट रेट 70 से 50 पे आती है वो आधे घंटे करने में। मार्क डिक्रीज, उसके साथ में ब्रीदिंग भी अपने आप स्लो हो जाएगी। सो दिस इज फॉर आफ्टर यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ अ लिटिल बिट, आफ्टर यू आर एबल टू सिट कंफर्टेबली फॉर अ व्हाइल, तभी ये सब एक्सरसाइजेस आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग चालू करने के लिए ये अपने बॉडी से शुरू करिए, योगा की एक्सरसाइज, या जस्ट इफ यू गो फॉर वॉक, डोंट पुट ऑन ईयरफोन्स एंड लिसन टू म्यूजिक और पॉडकास्ट, लिसन टू योर बॉडी। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, लिसनिंग टू योर बॉडी। अभी आप बैठे हैं, आपको अवेयरनेस है आपकी बॉडी के पोजीशन की, पैर का सेंसेशन, घुटने का जॉइंट कहाँ पे मुड़ा हुआ है, सीट पे जो प्रेशर है, बैक आपने खड़ा रखा हुआ है, क्लोज का प्रेशर आ रहा है बॉडी पे, सांस अंदर जा रही है आ रही है, हाथ अपने कहाँ रखे हुए हैं, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा, देखिए, हो गया ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन विथ योर बॉडी, इंप्रूव योर बॉडी अवेयरनेस। फिर उसके बाद बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेंटल मेडिटेशन के एक्सरसाइजेस बाद में आते हैं। तो ये तो हुआ ये सब। फिर आपने जो हैप्पीनेस के बारे में पूछा था, माफ करिएगा आप लोगों के सामने ये सब बातें बोलना मुझे बहुत शर्मिंदगी लग रही है। हैप्पीनेस को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक होता है सेंसरी स्टिमुलेशन, उससे हमको हैप्पीनेस मिलती है, अच्छा खाना, सुंदर सुंदर चीज देखने को, है ना, अच्छी जगह बैठना दोस्तों के साथ, वो हमको बाहर से मिल रहा है स्टिमुलेशन, उस स्टिमुलेशन से हमको अंदर अच्छा फील हो रहा है, उसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं। ठीक। लेकिन ये हैप्पीनेस ये पॉइजन हैप्पीनेस, इसी को बुद्ध ने बोला था, इति दुखम, वो इसी को बोला था। क्योंकि जो चीज बाहर से हमारी स्टिमुलेट होने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, इट इज लिमिटेड। आपके सामने लड्डू का एक प्लेट धर दें, कितने खाइएगा? एक खाइएगा बड़ा अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा तो देख के लगेगा, है ना। फिर एक खाइएगा तो अच्छा लगेगा, दो खाइएगा, लालच में खा लीजिएगा दो, चलिए वो भी अच्छा है, ज्यादा और लालच भी है भूख भी है, तीन खा लिया, चौथा तो नहीं खा पाइएगा ना। कोई अगर जबरदस्ती बंदूक रख के बोले नहीं खाना पड़ेगा 10, अच्छा लगना तो बंद हो जाएगा। लड्डू वही है, इट इज गिविंग द सेम सेंसेशन टू यू, बट यू कैन नॉट अप्रिशिएट इट एनीमोर। तो जो भी हैप्पीनेस स्टिमुलेशन से मिल रही है हमको, किसी भी तरीके के स्टिमुलेशन, फिजिकल स्टिमुलेशन, बॉडी का, आईज का, टेस्ट का, उसकी लिमिट है और वो खत्म होगी, चाहे वो बाहर से मिलना बंद हो जाए, चाहे अंदर हमारी अप्रिशिएट करने की एबिलिटी खत्म हो जाए। और दूसरा ये होगा कि यू विल ऑलवेज बी अ स्लेव टू समथिंग एल्स। योर हैप्पीनेस will be dependent on something else being available, another person, your partner, the food in front of you. It will be dependent on somebody else. अभी हैप्पीनेस का एक और समझने का तरीका होता है, which is harmony inside. That is a different kind of happiness. We all know that happiness also. लेकिन वो हैप्पीनेस, क्योंकि वो स्टिमुलेशन नहीं होता है, तो उसको हम सेकंड डिग्री पे रखते हैं, फर्स्ट डिग्री पे नहीं रखते। फर्स्ट में तो हमको स्टिमुलेशन चाहिए। लेकिन आप लोग डिफरेंट लोग हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाँ? तो आप लोगों को ज्ञान मिल चुका है, तो आप लोग हार्मनी को अप्रिशिएट करते हैं। So that is what we should be thinking of as happiness. That is what we should be striving towards. इसको कठोपनिषद में बोलते हैं श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय इज इजी, लाइकेबल, श्रेय इज नोबल। तो हम हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं, और बाहर की तरफ से हमको लगता है कि यहाँ से खुशी पकड़ लेंगे, वहां से खुशी पकड़ लेंगे, कभी नहीं पकड़ में आती, खत्म हो जाती है। हाथ में ऐसे बालू उठाया और सारी गिर गई। लेकिन जो अंदर की तरफ जाके जो मिलती है, जो रोक के मिलता है, रेस्ट्रेंट, उससे जो मिलती है, वो आपकी संपत्ति होती है, उसे कोई ले नहीं सकता आपसे। बाहर की कभी आपकी नहीं हो सकती। शरीर बुढ़ा हो रहा है, देर इज ओनली सो हाउ मच कैन यू ईट, जो
जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है, our senses become dull. छोटे बच्चे के हाथ में जरा सा पेपर कट होता है तो कितनी देर होता है? अभी मेरी उम्र में पेपर कट तो मुझे मालूम नहीं चलता कहाँ हो गया कोई, अरे यहाँ पे कटा हुआ है. Senses have become dull. You can't help it. This is the natural evolution of the body. तो बाहर का डिपेंडेंस हैप्पीनेस का रखेंगे तो वो हैप्पीनेस हमारे मुंह में वो कड़वाहट ही छोड़ेगी. सो यू हैव टू लुक फॉर द अदर साइड ऑफ हैप्पीनेस. इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी चीजें खाना बंद कर दें. इसका मतलब ये है कि यू मेंटेन अवेयरनेस. वो शिवा वाली कहानी को आप यहाँ पे याद रखें. यू हैव टू मेंटेन अवेयरनेस ऑफ what is happening in your inner world. The more you can maintain that awareness, the more you will be able to connect with happiness that stays with you instead of happiness that comes and goes. ठीक है, इतना काफी है आज के लिए. थैंक यू. Question and answers. Okay. Thank you, Anand. नहीं नहीं नहीं, not at all. I mean, we didn't even know. हाँ, see, आप और okay. Yeah. You talk about the awareness, right? I think that is very key term to say that we should be aware, right? Not about the body, mind, and all, but how we can start practicing it to be aware of our body or mind. So, what kind of steps we can take it for? Thank you. देखिए, वी आर ऑल अवेयर ऑफ अवर सेल्व्स. कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिस जो कि ये बोले कि मुझे तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है. बिकॉज द वर्ल्ड रिमाइंड्स अस. कहीं पे चोट लगेगी, कोई आके ऐसी कटु बातें बोल जाएगा कि अंदर दुख होगा. यू बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ. बट what I was saying earlier was we become aware of ourselves when the world forces that awareness on us. We need to start practicing awareness by choice. तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है बॉडी अवेयरनेस. अपने बॉडी की अवेयरनेस बना के रखें. बड़ा सा आसान तरीका है. कहीं भी रहें, बार बार अपना मन लाते रहें दो चीजों पे. एक, आपका फेस रिलैक्स है कि नहीं. दूसरा, आपके कंधे रिलैक्स है कि नहीं. बहुत आसान है. ठीक. इसके साथ में और चीजें जोड़नी है. अपने सांस पे ध्यान देते हैं. सो ईच ब्रेथ इज अ यूनिट ऑफ मेडिटेशन, यूनिट ऑफ अवेयरनेस. एक सांस अंदर गई, एक सांस बाहर आई, ध्यान देके करें उसको. एक बार में एक सांस बहुत है. करिए तो कई बार करिए तो वो 10 सांस हो जाएगी. 10 सांस के बाद शायद आदत नहीं है तो मन भाग जाएगा कहीं पे. आदत है तो भी मन भाग जाएगा, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ अवर माइंड. लेकिन उसे करते रहेंगे तो धीमे 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 इट बिकम्स ईजियर टू डू. और फिर जब हमें जरूरत होगी तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं. आपका बहुत देर. हाँ, yeah. वो उधर. आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी थी, तो अदर देन फास्टिंग जो अपन जैनिज्म में ऑब्जर्व करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन एवरीडे बेसिस, व्हाट वुड इट लुक लाइक सो दैट इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इजीली? देखिए, इसका कोई साइंस अभी बहुत क्लियर नहीं है. तो कई तरीके से सोच सकते हैं इसके बारे में. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिन का 8 घंटा चूज कर लो, उसी में खाना खाओ, उसके बाद नहीं खाओ. तो सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, देन यू देन डोंट ईट एनी अदर मील. कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी टोटल कैलोरी इनटेक 500 550 कैलोरी के अंदर रखो. तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ फास्टिंग. या फिर हफ्ते का कोई एक दिन चूज कर लिया जहां पे कि आपने सिर्फ फल. यू कैन वेरी इट इन डिफरेंट वेज. बट द आइडिया इज दैट यू आर टॉलरेटिंग हंगर. You are allowing your body to tolerate hunger, to feel uncomfortable. ये है उसका आइडिया.
वो गांधी जी का वो कहानी सुनिए ना, गुड़ खा बच्चा आता है गुड़ खाता है, तो गांधी जी से बोला जाता है कि इसको बताइए। तो मैं खुद ही उससे अभी आजादी नहीं पाया हूँ, तो मैं कैसे आपको बोलूं। लेकिन एक जो तरीका मैं कोशिश करता हूँ वो है कुछ बाउंड्रीज रखना, कि रात में शाम को इतने बजे के बाद अगर किसी की घंटी बजेगी तो फोन उठाऊंगा, वरना फोन नहीं उठाऊंगा। चार्जिंग पे लगाना है फोन तो दूसरे कमरे में लगा दूंगा। अम, इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन तो है नहीं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी कैन नॉट एस्केप द फोन्स। उसके लिए तो फिर आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, इफ यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड यू हैव टू हैव योर फोन, ये कोई कोई उसका उपाय ही नहीं है। लेकिन कुछ तो बाउंड्रीज कहीं पे तो लगाएं। रात में 12 बजे तक तो मैसेज नहीं देखें, क्योंकि वो बहुत एक्टिवेटिंग होता है। इट इज डिजाइन टू एक्टिवेट अस। उसका पैसा, अवर अटेंशन इज देयर मनी। हमारे पास सिर्फ एक करेंसी है जिंदगी में, वो हमारा टाइम और अटेंशन। ठीक, अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस इमीडिएटली नो व्हाट आई मीन, राइट। लेकिन हम कहाँ स्पेंड करते हैं उसको? यू कैन ओनली स्पेंड इट वंस। यू कैन नॉट, पैसा तो गोल्ड यू कैन गेट बैक, टाइम यू कांट, योर अटेंशन यू कांट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। एक इससे मुझे याद आया, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत एंशियंट ट्रेडिशंस हैं, ऐसे ही ग्रीस में भी बहुत एंशियंट ट्रेडिशंस थे जो कि खत्म हो गए जब क्रिश्चियनिटी आई, पेगनिज्म sort of was wiped out। तो एक डेल्फी में एक मंदिर है, वेरी ओल्ड टेम्पल, जिसमें कि उन्होंने उसको मैक्सिम्स बोलते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स है तो वैसे एंशियंट ग्रीक्स के पास 150 के करीब कमांडमेंट्स थे। तो वो टेम्पल के रूइन है जहाँ पे जगह जगह पे खोदा हुआ है एंशियंट ग्रीक ग्रीक में लिखे हुए कमांडमेंट्स। तो उनका जो मेन जो डोर था, जो मेन एंट्रेंस था, उस पे उन्होंने 3 कमांडमेंट लिखी थी अपनी। तो वो 3 उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज थे सिविलाइजेशन के लिए, उनकी जनता के लिए। बहुत सुंदर है, एकदम मजा आ जाएगा सुन के। पहला है नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ। और इसको जितना सोचेंगे उतना ये डीप होता जाएगा, क्योंकि व्हाट आर we our friends and family, are we our country, are we the things, are we our body, or are we just awareness? तो जितना सोचेंगे उतना डीप होता जाता है। दूसरा था नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। तो योर सेल्फ में भी स्पेस कर दें, सेल्फ एज अ थर्ड एंटिटी। दूसरा था नथिंग इन एक्सेस। सो अपने अपने लाइफ से एक्सेसेस को देखिए, आइडेंटिफाई करिए। धीमे धीमे आपने आइडेंटिफाई किया तो अपने आप वो कम होते आएंगे, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई देम फर्स्ट। ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, वट। और तीसरा था श्योरिटी ब्रिंग्स रूइन। ठीक, तो जहां भी आपको लगे कि आप इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके हैं, तो उसको क्वेश्चन करिए, क्योंकि जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है। उसमें अगर आप किसी जगह पे बहुत स्ट्रांगली कुछ फील कर रहे हैं तो आप कुछ और एंगल्स को मिस कर रहे हैं। तो ऑलवेज क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एंगर वुड बी वन ऑफ देम, फीलिंग enraged about something, what are you missing? If you feel angry about something is happening, what are the other things you are missing in that? तो श्योरिटी ब्रिंग्स ruin, ये तीसरा था उसका। और इसको देखिए तो आज के जमाने में हम यूज करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन इज थिंकिंग, नोइंग, बिहेवियर इज आवर एक्शंस। तो वहां पे नथिंग इन एक्सेस, कॉग्निशन, नो दाई सेल्फ। हाँ, अभी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इमोशंस को कैसे करें, कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है। मेडिकल साइंस में है नहीं भी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू एड्रेस इमोशंस। उसके लिए हमें आना पड़ता है आपके चरणों पे। ये सीखना पड़ता है, मेडिटेशन सीखना पड़ता है, वो सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये सब सीखना पड़ता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडिनेवियन आदमी है, उसका नाम है विम हॉफ। सुना है किसी ने? विम हॉफ वो तिब्बत में जाके 3-4 साल रहा, वहां से सीख के आया वो सब मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और आज के दिन में वो डेमोन्स्ट्रेशन करता है, बर्फ के टैंक में बैठ जाता है 2-2 घंटे तक, उसके स्किन का टेम्परेचर कम नहीं होता।
वो आर्कटिक में जाके तैर चुका है चड्डी पहन के, यहाँ पे कि लोग खड़े भी होते हैं तो 10 लेयर पहनते हैं। वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है बिना ऑक्सीजन टैंक के। वो नामीबियन मैराथन दौड़ा है बिना पानी पिए, डेजर्ट में नामीबिया के। और वो तिब्बत से सीख के आया क्या करना है। एक्सरसाइज उसके ऑनलाइन जाइए, वीडियोज उसके हैं यूट्यूब पे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोल्ड वाटर एक्सपोजर, स्ट्रेचिंग, विम हॉफ, WIMHOF, विम हॉफ। तो इसके लिए बहुत चालू करिए कहीं से। और एंडलेस है, लेकिन इसके लिए गीता में लिखा है कि अ, थोड़े से अभ्यास से, महान भय से आपको मुक्ति मिलती। महतो भयात, महान भय से मुक्ति के लिए धर्म का थोड़ा सा अभ्यास। धर्म मतलब यही है, धर्म मतलब वो रिलीजन बाहर का किताब का नहीं। योर योर धर्म, योर व्हाट योर बॉडी डस। और टाइम है अभी, सॉरी मैं ज्यादा बोलने लगता हूँ तो फिर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैं शादीशुदा आदमी हूँ, गुस्सा कैसे नहीं? खून का घूंट पीता हूँ। खून का घूंट पी के हजम करने की कोशिश करता हूँ। पीते तो सब लोग हैं, वो हजम करते हैं कि नहीं वो बात होती है। हाँ, अगर हजम हजम नहीं करेंगे तो कहीं और से निकल के आएगा, बाद में कुछ कमेंट आएगा। हजम कर लीजिए तो फिर वो उसी समय खत्म करना पड़ता है। यही है, अभ्यास है इसका, अभ्यास। और संतों की चरणों में आना, यही है उसका उपाय, और कोई नहीं है। जी। हाँ सर। हम्म। इतना अच्छा आपने प्रश्न किया है, मैं क्या बताऊं। Can you तो repeat द the question? क्वेश्चन इज, bad things happen to us, our dreams don't come true. How do we make our peace with it? Yes? Did I get it right? Yeah. So, all through our civilization, different groups of humans have come up with different ideas of how to deal with bad things happening to us. ठीक। तो हमारे सभ्यता में कर्म सिद्धांत हमने लाया कि आज जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण आपके पिछले के कर्म है, उसका कॉन्सिक्वेंस आज आपके सामने हो रहा है। और अगर आप आज अच्छे कर्म करेंगे तो आगे इसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे होंगे। ये कर्म सिद्धांत है। तो अगर आपके मन का नहीं हुआ, मतलब आपके कहीं पिछले के कर्म एक्टिवेट हो रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री एट इट, यू एक्सेप्ट इट एंड यू कीप ट्राइंग टू डू बेटर कर्मा टुडे सो दैट योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ नाइसर थिंग्स। ये कर्म सिद्धांत हो गया। फिर मॉडर्न साइंस बोलता है कि इट इज जस्ट रैंडम चांस, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तुम अपना काम करते रहो। इट इज नथिंग टू डू विथ um, there's a randomness to what happens. फिर जो अब्राहमिक रिलीजन्स या जो ओल्ड पेगन रिलीजन्स थे, जहाँ पे कि एक भगवान है जो कि आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, अच्छी चीजें या खराब चीजें, या एक बैड डेटी है, शैतान है किसी टाइप का, इविल आई आपको लग गई है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। somehow you externalize the bad from inside yourself to something outside. और इसमें अभी एंशियंट ग्रीक्स का जो आइडिया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दे हैड अ गॉडेस कॉल्ड फॉर्च्यूना, जहाँ से फॉर्च्यून वर्ड आता है। तो उसको जो कोर्ट में जो लेडी विद ब्लाइंड फोल्ड हाथ में तराजू लेके, दैट्स वर्जन ऑफ ओल्ड फॉर्च्यूना। तो वो अनरिलायबल गॉडेस थी। शी वॉज द डिस्पेंसर ऑफ फॉर्च्यून्स, बट हर हैप्पीनेस और एंगर वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ योर एक्शंस। शी वॉज फिकल। वो कभी खुश हो जाए कभी दुखी हो जाए। तो आपका जहाज अभी आ रहा है समंदर से, आपने कुछ मंगाया है सारा पैसा लगा के, अब वो जहाज डूब गया, फॉर्च्यूनर डिड नॉट स्माइल एट यू। या आपने 2 रुपए का टिकट लॉटरी का खरीदा, लग गई लॉटरी, फॉर्च्यूनर स्माइल एट यू। इट वॉज नथिंग टू डू विथ यू बीइंग गुड और बैड, इट वॉज जस्ट दैट गॉडेस डिसाइडिंग टू स्माइल और फ्राउन। तो अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वेदों में इसको
या चाइनीज लोगों का जो है ताओइज्म, उसमें वो लोग बोलते हैं रित, हमारे यहाँ रित बोलते हैं, उनके यहाँ ताओ बोलते हैं। तो ऋतस्य तंतुम विततम करके एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा किस जगह पे है, कि रित है, रित का मतलब होता है नियम, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, उनमें से एक मतलब होता है नियम। नियम के जाल सब जगह फैले हैं। देयर इज अ वेब ऑफ रूल्स दैट परमिएट्स एवरीथिंग, सो वी कांट सी ऑल ऑफ इट बिकॉज इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वी लिव इन। उसके पहले की चीजें कितनी हो चुकी हैं, अभी भी कुछ हो रही हैं। सो हमने अपना अटेम्प्ट जो भी किया है, हमने जो भी अपना एक्शन किया है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो ये अलग अलग सिस्टम्स हैं समझने के, कि हम अपने लॉस को लेके बैठे नहीं हैं अपने ऊपर, उसको एक्सेप्ट करें और अपना अगला काम करते रहें इन द अवेयरनेस की हम अपना मेहनत करेंगे, कभी उसका फल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा, ये तो मेरी पहुंच के बाहर है। अरे, see, I think that is, it is a myth that if you become more self-aware, you will lose all ambition. I don't think it works like that. So if you look at, people who have done the most amazing things in our society, right? तीन चार नाम ले लीजिए, विवेकानंद का ले लीजिए, शंकराचार्य का ले लीजिए, बुद्ध का ले लीजिए, हाँ, महावीर का ले लीजिए। तो इन लोगों ने क्या काम नहीं किया, क्या जिंदगी भर जितनी देर जगते थे काम ही करते थे, किया ना काम। फल मिलता है काम करने से, वो इमोशन तो बैगेज होता है हमारा, कि हमको जो बड़े घर बड़ा घर चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करना ही है ना। मेहनत करिएगा तो बड़ा घर मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, वो किस्मत है आपकी, मेहनत करना है। तो जब भी आप बाहर के साथ साथ अपने अंदर की भी जर्नी जो है वो करते रहते हैं, तो यू डोंट गेट overwhelmed by the gains or the losses you have outside. You are able to accept the loss and accept the gain both with humility, with deference, with gratitude. लेकिन अगर अंदर की जर्नी नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर का है, तो हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर रहे। तो ग्रोथ तो अंदर ही होनी है ना, बाहर की ग्रोथ का तो मीनिंगलेस है वो तो। बाहर की ग्रोथ, ये कपड़ा पहना है, इसको सोने का कपड़ा सिलवा के पहन लूं, उससे मेरे अंदर की फीलिंग में तो फर्क नहीं आएगा कोई। अंदर की फीलिंग भी तो साथ में चाहिए ना। और बाकी आई थिंक वी हैव मोर एनर्जी टू वर्क आउटसाइड इफ आवर लाइव्स आर इन मोर हार्मनी। मैं खुद अपनी जिंदगी देखता हूँ, 3-4 साल पहले जितना मैं काम करता था, आज मैं उससे ज्यादा कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन हैविंग मोर हार्मनी इनसाइड। और ये सबके लिए है, जो भी अंदर हार्मनी लाएगा वो बाहर ज्यादा काम कर सकता है। और उसके लिए थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। सिर्फ बड़े घर के लिए काम करते करते जिंदगी खत्म हो जाए, उसका मतलब क्या उस जिंदगी का। लेकिन आप काम करिए, बड़ा घर आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अंदर से ग्रोथ जो हो रही है आपकी, हैप्पीनेस, उससे इंडिपेंडेंट। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग एम्बिशन, आई थिंक वी शुड ऑल हैव एम्बिशन, बट वी शुड ऑल्सो एट द सेम टाइम
have self-awareness. We should also invest 10-15% of our waking hours in knowing ourselves, in watching what is it that is in excess, in watching where our convictions are becoming too strong. बैलेंस बना के चलने की बात है बस। जी। जैनिज्म के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, माफ करिएगा। अम, हाँ, तो जहां तक, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमारे जो, देखिए नेचुरल रिलीजन्स हैं, ये नेचुरल ऑर्गेनिक इंसानों के साथ ग्रो किए हैं, किसी एक आदमी ने लाके थोपा नहीं है हमारे ऊपर। चाहे वो हिंदुइज्म देख लीजिए, इवन बुद्धिज्म, बुद्ध ने कुछ थोपा नहीं है। बुद्ध ने वही बेसिक विचारों को ही सबके सामने लाया, जो कर्म कांड था वो सब हटा के ओरिजिनल आइडियाज जो हमारी जमीन के थे उनको सामने ले आके रखा। वैसे ही है ये भी, तो ये तो ऑर्गेनिक रिलीजन्स हैं, ये हमारी जिंदगी से बहुत जुड़े हुए से हैं। अम, तो इसको अलग से मान के तो मैं देखता ही नहीं हूँ। लेकिन अभी हम लोग का स्वभाव होता है ऐसा कि जब किसी भी चीज को आप आगे बढ़ाते जाइए तो उसमें हर पंडित अपना कुछ जोड़ते आता है ना। तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं जो कि ओरिजिनल मैसेज से एक्स्ट्रा होती हैं। अभी आपको अपना विवेक यूज करना पड़ेगा हर समय कि वो एक्सेस को देखिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर भी हर समय खड़े होइए। तो अ, वो जो है ना, वो श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग वाली नचिकेता की कहानी जो है उसमें, तो यू हैव टू बी रिफ्लेक्टिव एंड इंसाइटफुल एंड use your judgment as you go. Kumar, I'm sure. Yeah, can we have a big round of Oh Maram? So we don't clap here. So that's our way of showing the respect. Um, I mean, the way he told us, I'm sure everyone in very layman terms, in common terms, something that we go through day to day life. And I think the knowledge that you have is, I mean, I don't think even we have grasped 1%. So I think we need to see more and more of you again and again here. Thank you very much. Can I again ask Rajesh ji to introduce our second lecture? Second lecture. Huh? Oh, achha, okay, fine. Okay, just before that, we'll just have a 15-minute. Okay, we'll have Samniji saying a few words, and then we'll have a short tea break of 15 minutes or so. Yeah, 15 minutes. तो काफी देर से आप लोग सुन रहे थे। नीति प्रज्ञा जी को घड़ी नहीं दिख रही थी। जैसे ही डॉक्टर अजय जी बंद हुए, बोले अरे ये स्टॉप क्यों हो गए। एकदम जैसे इनको कोई शॉकिंग जैसे लगा कि स्टॉप क्यों हुए। बोले तो बोले चालू रखो 15 मिनट और बोलो। तो मुझे लगता है शायद पूरे पब्लिक की यही डिमांड है। तो सिर्फ एक सेशन से अभी डॉक्टर साहब का हुआ नहीं, अब लोगों को आपने टेस्ट चखा दिया। तो जैसा कि राजेश जी पहले ही बोले थे, समझ जी इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं। तो मैं सोचती हूँ दूसरे सारे ज्ञान देने के लिए और जैनिज्म को लेने के लिए अब आपको दोबारा कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे जैनिज्म का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उपनिषद का, वेदों का आपको इतना ज्ञान है, गीता का इतना ज्ञान है और इतना डीप ज्ञान है और काफी सुलझे हुए हैं। और नीति प्रिय जी बहुत बार कहा करते हैं, बोले मुझे ऐसा लगता है जो भी साइकिट्रिस्ट होते हैं वो खुद में ही अपने आप में एक पेशेंट ही हो। तो मुझे डॉक्टर जी को सुनने के बाद ये बात मैं तो नहीं कहूंगी। तो बहुत अच्छा लगा और बस हम चाहेंगे अब राजेश जी को बुला के लाना ना पड़े, अब डॉक्टर साहब खुद आएंगे। ठीक है, Oh Maram. और कम से कम महीने में एक बार
तो आप विजिट जरूर कीजिए। तो संडे को आपका स्टेज वेट करेगा, पब्लिक वेट करेंगे। Short break of 15